Good morning, and today I am going to discuss with you activity 2.13, for which I have drawn this table. Okay, you can read that activity, go through this activity, and what you need to do is you have to write down the names. Okay, in a tabular manner you have to draw the table, and then you need to write the formula. Okay. Before starting this, I want to explain you what is salt actually. Okay, आपने acids पढ़ा है. You know acids are those substances which releases H plus ions in water. Bases release hydroxide ion in water, है ना. तो salts basically क्या है? Salts are ionic compounds. They are what? They are ionic compounds. It means that they are made up of ions. Okay. Suppose you have NaCl. Okay, this NaCl means sodium chloride. It consists of two parts. One is positive part, okay, which is this one, Na plus, and Cl minus, and another is negative part. Okay, so the positively charged ion, you know, it is known as cation, and negatively charged ion is known as anion. Okay, you must be knowing this. You have studied in your 9th standard also, cation and anion. Okay, now the charges are such, positive and negative charges are such in salts that they neutralize each other. They cancel in fact each other. Okay, the total number of charge on the salt, the net charge on the salt comes out to be 0. वो कैसे 0 आता है वो देख लेते हैं. सपोज आपने ये, मैंने NaCl के एग्जाम्पल दिए. देयर इज वन पॉजिटिव चार्ज प्लस वन नेगेटिव चार्ज माइनस वन, कैंसिल आउट. ओके, तो क्या हो गया? नेट चार्ज विल बी 0 ऑन दी सॉल्ट. सपोज यू हैव सोडियम सल्फेट. आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल फॉर सम रीजन. इफ यू हैव सोडियम सल्फेट, sodium has positive charge, it has a positive charge, and sulfate has 2 negative charge. लेकिन जब आप ये ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि how many total positive charges? 2 positive charges, okay, and 2 negative charges. आपको यहाँ दिख ही रहा है, as there are 2 sodium ions. okay, जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो what you will write? 2Na plus. 2Na plus का मीनिंग क्या है? 2 positive charges. And here sulfate ion itself is carrying 2 negative charge, will neutralize, will cancel each other, and you have a net overall charge will be 0 on the salt. ऐसी potassium nitrate आपने लिया. If you have potassium nitrate, potassium has 1 positive charge. Nitrate, okay, nitrate is a polyatomic ion, but as a whole it contains 1 negative charge, है ना, it carries 1 negative charge. So plus minus will cancel each other. Okay. Similarly, calcium carbonate. Calcium has 2 positive charge, carbonate 2 negative charge, cancel out each other again. So overall charge will be 0 on the salt. Okay, so the positive part usually comes from, positive part of the salt usually comes from metal. Okay, and this part, positive part, is known as basic radical. Okay, the positive part that comes from base, positive part I am repeating, that comes from base. जैसे NaCl में आप देखेंगे, NaCl किस बेस से आया? NaOH से. तो इस Na प्लस को हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल. ओके, और क्लोराइड आयन कहाँ से आया है? इट हैज कम फ्रॉम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. सो HCl से आया, तो इसको हम बोलेंगे क्या? एसिड रेडिकल. बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल. इतना समझ में आ गया? Na सोडियम, Na प्लस बेसिक रेडिकल, Cl माइनस एसिड रेडिकल. क्यों? बिकॉज Na प्लस हैज कम फ्रॉम व्हाट? NaOH, एंड क्लोराइड आयन कहाँ से आया है? फ्रॉम HCl. ओके, ऐसे सोडियम सल्फेट को आप देख लीजिए, फ्रॉम NaOH, सल्फेट फ्रॉम H2SO4. तो अभी हम यही पूरा इसमें देखेंगे कि क्या सॉल्ट, आई थिंक सॉल्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया. सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. पॉजिटिव चार्जेस are known as cations, whereas negative charges are known, negatively charged species are known as
एनाइंस, एंड पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नोन एज केटाइंस। इतना समझ में आया। दूसरी बात, ओवरऑल चार्ज ऑन सॉल्ट इज 0। एसिड रेडिकल क्या बोला जाएगा, विच द पार्ट विच कम्स फ्रॉम एसिड, ओके। एंड बेसिक रेडिकल कौन सा वाला होगा, जो विच कम्स फ्रॉम बेस। क्यों, क्योंकि आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है, इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यही तो पढ़ा है आपने न्यूट्रलाइजेशन में कि दैट एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अब हम जल्दी से एक्टिविटी पे आ जाते हैं कि एक्टिविटी में हमें क्या करना है। एक्चुअली इस एक्टिविटी में लास्ट में मैं आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बताऊंगी। Okay, this activity 2.13, for which I am requesting you, all of you, to write down the formulae by your own. Okay, और जहाँ पे आपको confusion होगा you can watch that video. Okay, आगे देख सकते हैं आप, लेकिन पहले आप पॉज करके अपने आप पूरे लिखिए, और मैं भी लिख रही हूँ। You know, I have written the formulae for all 9 salts that have been given. K2SO4, एक सेकेंड, सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एंड सो ऑन। ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा यू कैन आस्क मी कि ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एसिड यूज्ड एंड बेस यूज। सो फॉर व्हाट, फॉर दिस आई एम मैंने पहले बेस एसिड पहले लिखा है, मैं बेस लिख देती हूँ। अभी आपको रीज़न भी समझ में आ जाएगा मैंने क्यों किया ऐसा। देखिए, आपने बेस मैंने इसको क्यों रब कर दिया, बिकॉज आप देखेंगे इनिशियली जो शुरू वाला पार्ट होता है, ओके, जो फर्स्ट पार्ट आपको दिखेगा वो कैसा है, इट हैज़ कम फ्रॉम बेस, ओके। तो आपको ज़्यादा इजीली आप लिख सकते हैं, ओके। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो चाहे आप एसिडिक पार्ट पहले आप मेंशन कर दें कि पेरेंट एसिड ये है, पेरेंट बेस ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एज यू आर नाउ यू आर जस्ट बिगिनर, तो इसलिए मैंने बेस पहले लिख दिया। नाउ K2SO4, ओके, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि पोटेशियम इज व्हाट इज द पोटेशियम आयन जो होगा वो क्या होगा, बेसिक बेस से आया है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, इस केस में आप क्या करिए, देखिए आपने एसिड्स कितने तरह के पढ़े हैं, जो कॉमन एसिड्स हमने पढ़े हैं, HCl हमने पढ़ा है ना, H2SO4, HNO3 और H2CO3 और CH3COOH, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड। बाकी के नाम जानते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ओके। तो लास्ट में जो भी आपको ये वाला आपको ये पार्ट दिखता है, ठीक है, तो ये कहाँ से अगर आया होगा, किसी भी सॉल्ट में आपको ये वाला पार्ट दिखता है, ये वाला क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव है ना, या फिर ये पूरा CH3COO-। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपने H को एक्सक्लूड कर दिया, आप देख रहे हैं मैंने H को एक्सक्लूड हटाया हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, किसी भी सॉल्ट में अगर आप ये देख रहे हैं, यानी ये किससे, ये इस वाले एसिड से आया। अगर क्लोरीन दिख रहा है आपको कहीं भी लगा हुआ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से के साथ आया है। अगर कहीं भी आप सल्फेट ये देख रहे हैं, क्लोराइड देखा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट देखा यानी सल्फ्यूरिक एसिड, NO3 आपने लगा हुआ यहाँ देखा तो यानी नाइट्रिक एसिड, CO3 अगर देख रहे हैं आप तो यानी कार्बोनिक एसिड, और CH3CO का एग्जाम्पल अभी इसमें हमने नहीं लिया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यानी एसिटिक एसिड से आया है, ओके। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, इससे बहुत ईजिली हो जाता है। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए रफली, अगर आपको पेरेंट एसिड मालूम करना है, ओके। अब मैंने K ऐसे पार्टीशन कर दिया, सल्फेट आयन अलग कर दिया, पोटेशियम आयन अलग, और यहाँ पे OH लगा दीजिए। तो बेस यूज्ड क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एसिड यूज्ड क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट दिख रहा है दैट इज वाई सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ Na2SO4, इसमें आप बता सकते हैं आराम से कौन सा वाला बेस होता है, Na जिसमें आए बेस में, NaOH, OH लगा दीजिए, ज्यादातर में OH लगा देंगे आप तो आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। और सल्फेट H2SO4, कैल्शियम में CaOH ट्वाइस, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
4. Now you will be able to understand that सल्फेट जितने में आ रहा है इसका मतलब क्या, आपको सीधा H2SO4 कर देना है। ओके, यहाँ देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वैलेंसी, ये सब में ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्मूला लिखना है H2SO4। ऐसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड भी हो सकता था वैसे, और H2SO4। सोडियम क्लोराइड खुद आप आंसर कर सकते हैं NaOH, क्लोराइड है HCl। ओके, सोडियम है अगेन NaOH, नाइट्रेट है HNO3। ओके, सोडियम है NaOH, कार्बोनेट है H2CO3, NH4OH। आप ये वाला, हाँ ये एक्सेप्शन है NH4Cl। हियर the basic part has not come from any metal, it is actually non-metallic. Okay, nitrogen, hydrogen, polyatomic ion, it is ammonium ion, but it carries positive charge NH4 plus. Okay, chloride है HCl. Okay, इसको note down कर लीजिए। Then we will move to family of salts. Family of salts, अब देखिए salts which have same positive, और या तो सेम पॉजिटिव रेडिकल हो या फिर सेम नेगेटिव रेडिकल हो, सेम पॉजिटिव रेडिकल और सेम नेगेटिव रेडिकल। रेडिकल समझ रहे हैं ना, बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट्स को क्या कहा जाता है, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। ओके, अब जैसे आप इसमें देखें, इफ यू आर गोइंग टू क्लासिफाई सॉल्ट on the basis of bases, salts on the basis of from which base they are derived from, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक पार्ट आप देखिए, तो आपको यहाँ पे सोडियम यहाँ दिख रहा है। ओके, वन टाइम अपियरिंग, अनदर टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो जितने भी देखे ये हैं Na2SO4, NaCl, NaNO3 and Na2CO3, they belong to the same family of salt, and what is that family, sodium family। सोडियम सॉल्ट्स बोले जाएंगे। ये कैसे सॉल्ट्स हैं, ये सारे सोडियम के सॉल्ट्स हैं, सोडियम सॉल्ट्स। बेटा पानी पी लो। ओके, अब इसमें देखिए पोटेशियम अगर कहीं और भी अपेयर हो रहा होता है, अभी हमें नहीं दिख रहा, अगर पोटेशियम बेसिक पार्ट में अगर आपको बेसिक रेडिकल में और कहीं दिख रहा होता, सपोज करिए यहाँ पे आपको पोटेशियम नाइट्रेट होता है इंस्टेड ऑफ NaNO3, तो आप क्या लिख देते, K2SO4 एंड KNO3 बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम सॉल्ट्स हैं। ओके, नाउ कम बैक टू द सेम टॉपिक। सल्फेट दिख रहा है हमें, सल्फेट हियर, सल्फेट अगेन। ओके, कितनी टाइम्स दिख रहा है, 5 टाइम्स इट्स अपियरिंग। तो यानी ये वाले कैसे सॉल्ट हैं, दे आर सल्फेट सॉल्ट्स। किससे डिराइव हुए, फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, पेरेंट एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड इन ऑल 5 केसेस फ्रॉम 1 to 5। तो आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट K2SO4 Na2SO4 CaSO4 MgSO4 and CuSO4, they belong to what, they are sulfate salts basically। okay, now see another similarity। अब आप लोग खुद फाइंड आउट करिएगा, कुछ और दिख रहा है एसिड रेडिकल में विच इज कॉमन इन एनी 2 or more than 2 salts। ये देखिए सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम NaCl and H4Cl, sodium chloride and ammonium chloride, they belong to what, they belong to the same family, they are chloride salts। okay, तो इस तरह से आपको कोई भी सॉल्ट्स दे दिए जाएं, आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि व्हाट इज द पेरेंट एसिड, व्हाट इज द पेरेंट बेस। ओके, अब मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप अपने आप ट्राई करिएगा कि आप ये खुद फाइंड आउट कर पाएँ कि पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस कौन सा है इसमें। अब इसमें मैंने आपको 4 एग्जांपल्स आई हैव रिटन। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके,
सोडियम एसीटेट, इसको सोडियम एसीटेट बोला जाएगा. ओके, पोटेशियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. इफ आई आस्क यू टू राइट डाउन पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस, क्या करेंगे? फिर से इस तरह से आप कर लेंगे, डिवाइड कर लीजिए और OH लगा दीजिए. इस केस में आपको याद रखना है जहाँ पे CH3COO है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, एंड दिस सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. ओके, ये याद रखना है आपको, वरना इसमें गड़बड़ आप कर सकते हैं. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आप जल्दी से लिख लीजिए, क्या होगा? पेरेंट बेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पेरेंट बेस विल बी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड पेरेंट एसिड विल बी व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब जल्दी से ये देखिए, CH3COO लगा दिया था मैंने, तो यानी पेरेंट एसिड विल बी व्हाट? H लगा दीजिए बस आगे, एसिटिक एसिड. और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. पेरेंट बेस विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड. ऐसे पोटेशियम नाइट्रेट के साथ KOH एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 will be the parent acid. KOH will be the parent base. MgCl2 में देख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, एनी सिमिलरिटी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमें इसमें बेस तो कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा. ओके, ऑल बेसिस आर डिफरेंट, बट आप हाँ एसिड के बेसिस पे आप इसमें दो सॉल्ट्स को आप कह सकते हैं कि दे आर क्लोराइड सॉल्ट्स. ओके, लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, they are what? They are chloride salts.